Hi guys, my name is Manohar, and today we'll again be covering VARC section, and I shall discuss. See, I have noticed that there is reservation with respect, especially in VARC, that जो मेरा method है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, and it might consume a lot of time. I would try to debunk that, and today I'm thinking of straight away trying to first create the cheat sheet that I would call it, the go to data set की कौन सा prioritize करना है and कौन सा attempt करना है. So बिना बात किए थोड़ा सा I'll try to do it as soon as possible so that it can fit under 6 minutes, ताकि तुमको भी लगे कि हाँ ये feasible तो method है, इतना difficult नहीं है. And other than that, there is a reservation with respect to quants in my head कि my methods are there. I have a strategy in place, and the strategy in with respect to quants is the most conventional one. वो 3 iteration वाला, right? So if I try to make a strategy video, so it won't be short. उसमें पूरा solve ही करना होगा मुझे. Otherwise, what I would do, very differently when it came to quants was analysis of the paper, the sectional paper, not section paper, analysis of that particular section. वो मैं काफी थोड़ा सा अलग से करता था. So if you all want a video on that, definitely let me know. But other than that, उसका strategy काफी linear सा है कि आपको intuitively लगे कि ये अगर first read में solve हो रहा है, so you attempt those questions. जो लगे कि इसको रीड करने में प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सो यू विल मार्क इट टू सॉल्व लेटर, एंड थर्ड आइटरेशन में यू विल बी सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट वन. बेसिक सा स्ट्रैटेजी है. Most important thing to be noted over there is keeping your ego under check, because a lot of times, especially with respect to engineering background people, हम दिल पे ले लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, एंड वी एंड अप वेस्टिंग क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. अभी टाइम स्टैम्प पे हो रहा है 2 minutes 11 seconds, so we could start at approximately I think 2:30, 2 minutes 30 seconds, and we'll time it कि मेथड जो है वो कितने टाइम में हो रहा है, राइट. एंड आज का सेट है मॉक नंबर 20 का, एंड लेट्स गो फॉर इट. There is also violation of the rule of society agreed by laws. Okay. However, in the case of juvenile criminal, most of this will be discussed after reading to the delinquency. Okay. In the case of strategies, criminal
एंड टाइम, यहाँ पे मैंने पीजे गलती से लिख दिया है एंड यहाँ पे मैंने समरी लिखा है। ओके गाइस, सो इट्स 9 minutes and 18 seconds and I started at 2 minutes 30 seconds, right? So if you go to see इतना टाइम नहीं लगा, राइट? 6 मिनट भी अगर आप लगा लो तो 8.5 मिनट हो जानी चाहिए थे, तो मेरे को a little over 6.5 minutes और 6 minutes 40 seconds जितना लगा to do the entire exercise. Now talking about this, Bloomsbury मेरे को आर्टिकल ही इतना समझा नहीं, so उसका प्रायोरिटी among the 5 मैं उसको लीस्ट रखूंगा, right? Even though question number 20 was very easy, it was just asking for which figure of speech they have used, right? And वो directly मतलब मुझे आंसर भी दे गया, alliteration था, right? That is fine. That is something if you know, you know, you don't know, you don't know. Literature and art वाला भी जो था, now the write up is very small but it's a little complicated and उसको मैं 4th ही रखूंगा because वो है something that will take my time also interpretation के लिए. Gender roles जो topic था, 2 अच्छे खासे objective questions थे and बाकी जो भी था interpretation based थोड़ा objectively, they are also on the easier side. and gender role वाला जो topic है थोड़ा relevant है, you understand, you relate to it, India में काफी दिखते भी हैं, so this I will be keeping as my first preference to tackle. Then let's talk about between crime and technology. Now crime के लिए 5 we have 5 questions. Crime के लिए we had 5 questions and उसमें से 2 objective है. Tech में एक ही objective था, so इसके लिए crime वाला priority भी ऊपर लेगा. Now इधर दूसरा एक एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हो is 2 elements further you can consider is crime and tech के बीच में आपको कौन सा पढ़ना बेटर है. If you like to read more about tech then definitely prioritize that over crime वाला. Second element जो आप कर सकते हो consider here is the length of the entire passage, right? So यहाँ पे भले ही 5 क्वेश्चन है और वहाँ पे तो 4 क्वेश्चन है, right? So marginally इतना भी डिफरेंट नहीं है, so just look at कितना बड़ा सा तुम्हारा आर्टिकल है. सो ये वाला आर्टिकल मुझे बड़ा लग रहा है फॉर अ 4 क्वेश्चन वाला सम, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक ही था जो मैं मार्क कर पाया. यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड 5 है, 5 में से चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज एक्चुअली सॉल्विंग 2 out of 3 इज अ लिटिल हाई, राइट? सो आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग क्राइम वाला ओवर दैट. सो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 3 फिर, ठीक है. एंड दैट्स इट, दैट्स simply how you do it, right? आपने देखा 6 मिनट में हुआ भी है and I'm not specifically reading the first line or third line or in between the sentences. मैं literally skim through कर रहा हूँ. स्टार्ट में 2 लाइन पढ़ लिए, उसमें से कुछ समझा, अच्छा खासा समझ गया, तो I just move on and बीच में कोई ग्रेस थ्रू करते करते कोई लाइन दिख गई तो okay, is it coherent with what I'm understanding first? अगर वो coherent रहा तो और एक कोई लाइन देख लिया, बस move on, ठीक है. I follow the 3 strike rule. You can follow something else also. 3 strike meaning 3 लाइन पढ़े मैंने और तीनों लाइन पे मेरे को थीम एक कोहेरेंट लग रहा है तो वही थीम हो गया मेरा, ठीक है. बाकी पीजे सम एंड ओ का तो मार्किंग आपने देख लिया है. Among this also there's another thing that you can do is अगर आपको लगे कि ये पर्टिकुलर ऑड वन आउट छोटा है एंड ये हो जाएगा जल्दी, या सेम फॉर समरी और पीजे, देन उसको सिंपली ब्रैकेट्स में डाल दो. से आपको लगता है कि ऑड वन आउट 23rd वाला छोटा है एंड इजीली हो सकता है, लाइक सो उसको सिंपली ब्रैकेट में डाल दो. तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ऑड वन आउट्स तो you'll give priority to the 23rd one. It's on top of the other 3, ठीक है. बेसिक सा फंडा है एंड यहाँ पे आप क्वेश्चंस अगर देखोगे, क्वेश्चन पेपर बड़ा है एंड जेंडर रोल वाला रिलेटिवली इजी था, क्राइम वाला भी रिलेटिवली इजी एंड टेक वाला भी रीडेबल है. सो 3 रीडेबल है एंड जो बाकी के नीचे थे लिटरेचर वाला एंड ब्लूम्सबरी वाला, आई डोंट नो हाउ ब्लूम्सबरी वाला विल इवन पैन आउट, उसको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, बट अगेन द आर्टिकल वाज स्मॉल सो वो भी डूएबल तो है, राइट? और एक क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया, बराबर. सो दैट्स परफेक्टली फाइन. एंड ये वाली चीज में ऐसा भी हो जाता है कि ब्लूम्सबरी अगर आपको वो पूरा पैसेज छोड़ना भी हो, एक 20th जो क्वेश्चन था विच टॉक्ड अबाउट जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, उसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा. सो एक वो एडिशनल बोनस क्वेश्चन आ गया, आपने शायद रीड करते करते ही आप मार्क कर दो, मैंने वो किया होता, राइट? तो एक क्वेश्चन मेरा एलिमिनेट हो जाता था ऑन द वे.
So this is it. Let me know if you all would want to watch with respect to quants too. I'll be reiterating it. Strategy मुझे properly लगा था for my VARC and DILR, but for quants the strategy is quite conventional. बराबर से प्रैक्टिस करो, 3 आइट्रेशन में पेपर स्कैन करो. फर्स्ट आइट्रेशन में यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट ऑल्सो लाइक उसका अगर आपको वन शॉट में अगर उधर ही सॉल्व हो रहा है, डू इट राइट अवे. अगर आपको लगता है रीड करने में टाइम लगेगा, ये डूएबल है, मार्क इट. एंड नहीं अगर लग रहा है कि ये डिफिकल्ट पड़ सकता है तो डोंट मार्क इट. सिंपल एज दैट. सेकेंड आइट्रेशन में आप सब मार्क्ड वाला करोगे एंड थर्ड आइट्रेशन में आप अनमार्क करोगे. I could cover it. Do let me know what you all want and also put your doubts down. DILR में अगर मैं वापस से कवर करूंगा तो क्या कवर करना चाहिए, सब बताइएगा. ठीक है. थैंक यू गाइस. बेस्ट ऑफ लक.